There are several important characteristics of pteridophyte which is dominant over or most advanced over bryophyta is the sporophytic plant body they have. इनकी जो plant body होती है वो sporophytic plant body होती है, सबसे important point. Then second one important point is advanced character of pteridophyta or bryophyta is the development of vascular system. वेस्कुलर सिस्टम जो है डेवलप हुए हैं, इस वजह से इसे हम ट्रू लैंड प्लांट कहते हैं. द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट इज टेरिडोफाइटा, ऐसे हम कहते हैं. Okay, then third important characteristic is here the sporophytic as well as gametophytic structures, they are autotropic independent structures. ये थर्ड इंपॉर्टेंट एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है टेरिडोफाइटा का. Then fourth important characteristic, the next one characteristic, important characteristic is in Pteridophyta there are several important types of characters are developed like heterosporous condition. Okay, उसे हम अभी डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ. One important characteristic that is developed here is heterosporous condition. What is meant by heterosporous condition? टेरिडोफाइट जो होते हैं इसमें इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है टेरिडोफाइट के, उनमें हमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन नजर आती है. हेटेरोस्पोरस कंडीशन यानी क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स. ओके, दो डिफरेंट तरह के जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं जैसे कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर. Okay, the formation of two different types of the spores, that is microspore formation and megaspore formation, it is known as the heterosporous condition. Those pteridophytes in which the two different types of spores are produced, it is known as heterosporous condition. Okay, so टेरिडोफाइट इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है. और ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इट मे बी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, बट मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस. ओके, यानी मेजॉरिटी जो टेरिडोफाइट ऑर्गेनिजम्स, मेजॉरिटी ऑफ स्पोरोफाइट्स सॉरी टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस. इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे जो टेरिडोफाइट के एग्जांपल है दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ द स्पोर, यानी दे आर होमोस्पोरस वन. ओके, जैसे कि हमने आपको बताया था ऑल द ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस. सभी ब्रायोफाइटा जो है वो सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वो होमोस्पोरस कंडीशन होती है. होमोस्पोरस कंडीशन इट इज द प्रिमिटिव कैरेक्टर. Then heterosporous, few pteridophytes like Salvinia, Isoetes, Selaginella और साथ ही साथ Marsilia. These are the examples of heterosporous pteridophyte. Get it down. ये कई बार पूछा गया है. So, what is by heterosporous pteridophyte? Those pteridophyte that produces two different types of the spore from their sporophytic plant body. That is microspore and megaspore. Such type of pteridophytes are known as heterosporous pteridophyte. Heteros means different. Different means two different types of the spores produced from sporophytic plant body. Such type of pteridophyta are known as heterosporous pteridophyte. इनके examples, few pteridophytes are heterosporous, while majority of pteridophytes are homosporous. So, heterosporous pteridophytes के जो examples है उसे आपने याद रखना है. Selaginella, write down. Salvinia, Salvinia, साथ ही साथ Isoetes and Marsilia. These are the few important examples of heterosporous pteridophyte. इनकी जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है ये मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं. मेगास्पोर इनका साइज थोड़ा ज्यादा होता है और माइक्रोस्पोर का साइज माइक्रोस होता है, छोटा होता है. So these two types of spores are produced in these important examples of pteridophytes. इसीलिए एक एजोला एग्जाम्पल भी होता है. सो ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहते हैं.
Okay, so heterosporous condition, the development of heterosporous condition, it is one of the advanced characteristic of the pteridophyte. So टेरिडोफाइट से पहले जो प्लांट ग्रुप थे जैसे कि अल्गी और ब्रायोफाइटा, इनमें इनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन एब्सेंट है। सबसे पहले हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो डेवलप हुई है वो टेरिडोफाइटा में डेवलप हुई है, और इसके बाद टेरिडोफाइटा के बाद जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आने वाले हैं, ये भी हेटेरोस्पोरस, ऑल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स एंड ऑल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर heterosporous plant. Therefore heterosporous condition it is considered as the most important condition for seed development, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों प्लांट्स में सीड डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? सीड्स डेवलप होते हैं। मगर टेरिडोफाइटा में सीड डेवलप नहीं होते, isn't it? और ये ऑल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब ये है सीड डेवलपमेंट के लिए हेटेरोस्पोरस कंडीशन चाहिए। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हेटेरोस्पोरस होती है। आगे डिस्कस करते हैं सीड हैबिट, सीड प्रोडक्शन के लिए किस तरह का हैबिट चाहिए प्लांट बॉडी में। ओके, सो सबसे पहली कंडीशन होती है हेटेरोस्पोरस कंडीशन फॉर सीड हैबिट। जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सभी जिम्नोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स एंड ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर हेटेरोस्पोरस, while majority of pteridophytes are homosporous while few are heterosporous। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस हेटेरोस्पोरस कंडीशन और होमोस्पोरस कंडीशन। ये क्या होता है हमने अभी आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे ये जो स्पोर्स है, these spores how they are developed from the sporophytic plant body। ये जो स्पोर्स हमने आपको बताए, ये स्पोर्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? these spores they are produced from, ओके, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। द मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट, व्हाट इज बाय स्पोरोफाइट? द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं? द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी और स्पोरोफाइट, ऐसे हम कहते हैं। ओके, तो इस स्पोरोफाइट से ये स्पोर्स कैसे डेवलप होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, इसी को हम डिस्कस करते हैं। वेरी गुड श्रावणी। ओके, सो चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। कौन से ऐसे स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं टेरिडोफाइटा में, ये डिस्कस करवाते हैं आप सभी को। और इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यस, हेटेरोस्पोरस कंडीशन पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। अगला पॉइंट देखिए, सो दिस वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल आपको नजर आ रही है। द गैमेट डिप्लॉइड्स ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट साथ ही साथ मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रोपिक मेन प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइटा की, उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और ये स्पोरोफाइट जो है इनकी मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी। Okay, then gametophytic plant body, it is not the main plant body but it is the gamete producing structure. Gametophytic plant body, it is the gamete producing structure. Sporophytic plant body, it is larger in size, while gametophytic plant body it is microscopic in size। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। Okay, then as I told you, sporophyte means the spore producing structure developed in sporophytes। जो टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा इस प्लांट ग्रुप में जो स्पोरोफाइट, इनका जो स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है। ये कौन से स्ट्रक्चर है? जिस स्ट्रक्चर से स्पोर डेवलप होते हैं, स्पोरोफाइट इट में प्रोड्यूस स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल्स, सोरस एंड सिनेंजिया। सो डिफरेंट डिफरेंट टेरिडोफाइट में डिफरेंट डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स है। ये स्ट्रक्चर कौन से है? इन स्ट्रक्चर को आपने नोट डाउन करना है। ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं?
the spore producing, write down, the spore producing bodies. Spore producing sporophytic body. Spore producing structures in pteridophytes are, okay, number one, sporophylls. Number two, strobilus. Sporocarp, Sorus. Syngenia. Okay, so sporophylls, strobilus, sporocarp, Sorus, Syngenium. Okay, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज इन टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट में ये स्पोर प्रोड्यूस करने वाले बॉडीज है. इन सभी के नाम आपको याद रखना है. दीज आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स इन टेरिडोफाइट. ओके, तो स्पोरोफिल्स, ओके, क्या होता है, स्ट्रोबिलस क्या होता है, स्पोरोकार्प क्या होता है, सोरस क्या होता है, और सिंजेनिया क्या होता है. तो हम आपको ये तीन डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है, स्पोरोफिल, सोरस, स्ट्रोबिलस, ये क्या होते हैं, ये जो कॉमन है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे. ओके, so let us discuss about the spore producing structures. What are the different spore producing structures present in Pteridophyta? In diploid autotrophic large plant bodies of Pteridophyta, that is sporophytic plant body, it produces such type of spore producing structures like sporophylls, strobilus, sporocarp, sorus, syngenium. So ये जो different spore producing structures हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं. So in their sporophytic generation, they may produce the such type of strobilus. देखिए, so this is the compact structure. This is one is the compact cone-like structure. और इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में स्पोरेंजियम होते हैं. तो देखिए, ये जो स्ट्रोबिलस है, इस स्ट्रोबिलस का एलएस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन हम आपको यहाँ बता रहे हैं. और इस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में आपको नजर आ रहा है ये सिंगल स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, दैट इज स्पोरेंजियम. ओके, तो ये देखिए, ये हम स्पोरेंजियम कहते हैं. और इस स्पोरेंजियम के भीतर स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, और इनमें मियोसिस होकर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ये जो स्ट्रोबिलिस है, इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोस्पोरस कंडीशन. यानी ये जो प्लांट बॉडी है, यह है इक्विसेटम. इस प्लांट बॉडी का नाम है इक्विसेटम, जिसे हॉर्स टेल भी कहा गया है, क्योंकि इनकी जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, अगर आप देखते हो तो ये हॉर्स टेल की तरह नजर आती है. इस वजह से इसे हम हॉर्स टेल कहते हैं. इक्वी, इक्का, इक्का, इक्का मीन्स इक्की, इक्की मीन्स हॉर्स, सेटम मीन्स टेल. इक्वीसेटम, इसका जो साइंटिफिक नेम दिया गया है इक्वीसेटम, ये इनकी प्लांट बॉडी जो है वो हॉर्स के टेल की तरह नजर आती है. छोटी ही होती है, फ्यू सेंटीमीटर इन लेंथ टू द 10 सेंटीमीटर. तो इनकी जो प्लांट बॉडी का जो शेप होता है, ये किसकी तरह नजर आती है, इट लुक्स लाइक द हॉर्स टेल. ओके, तो ये हॉर्स टेल की तरह नजर आती है, और जिसकी वजह से इसे हम इक्विसेटम कहते हैं, या फिर कॉमन नेम हॉर्स टेल कहते हैं. क्या कहते हैं, हॉर्स टेल. ठीक है, सो आपने इसे याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स टेल, ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो आंसर इज इक्विसेटम. इक्विसेटम इज नोन एज हॉर्स टेल. इक्विसेटम में जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इनके स्टेम के टिप पर, उसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं. क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस. सो दिस वन इज द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज स्ट्रोबिलस. और इस स्ट्रोबिलस का एलएस लेने के बाद ये इस तरह से नजर आता है. और इस स्ट्रोबिलस में कई सारे, इस स्ट्रोबिलस में कई सारे इस तरह से स्पोरेंजियोफोर होते हैं. ये सिंगल जो है स्पोरेंजियोफोर है, और इस स्पोरेंजियोफोर में ये जो पार्ट है वो है स्पोरेंजियम. और इस स्पोरेंजियम के भीतर होते हैं स्पोर मदर सेल्स. स्पोर मदर
सेल SMC, जिसमें मियोसिस डिवीजन होकर स्पोर टेट्राएड फॉर्म होता है और इनमें जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। सो इक्विसेटम इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोस्पोरस प्लांट बॉडी। ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी का बेस्ट एग्जांपल है, इसे याद रखिए। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इक्विसेटम इट इज द होमोस्पोरस टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी, इसे याद रखना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। और डिफरेंट डिफरेंट कौन से स्ट्रक्चर है जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं? सो सेकेंड स्ट्रक्चर इज द स्पोरोफिल। नाउ सी हियर, स्पोरोफिल, sporophylls, sporo means spore producing, fill means leaves। ऐसे लीव्स जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सिलेजिनिल्ला। सिलेजिनिल्ला की जो प्लांट बॉडी होती है, हमने कल आपको बताया था, सिलेजिनिल्ला में हॉरिजॉन्टल और इस तरह से इरेक्ट ब्रांचेस होते हैं। ओके, और इस इरेक्ट ब्रांच पर जो लीव्स होते हैं, these leaves they are compactly arranged, the leaves at their tip, इनके जो स्टेम होता है, इनके स्टेम पर नजदीक, इनके टिप के पास जो लीव्स होते हैं, दे गेट कॉम्पैक्टली अरेंज, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इनके कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो दिस वन इज द स्पोरोफिल। जो इनके स्टेम पर, स्टेम के टिप पर जो लीव्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, वो लीव्स स्पोर प्रोड्यूस करने वाले लीव्स होते हैं और इसी को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। दैट इज नोन एज स्पोरोफिल। These sporophylls और spore producing leaves they are compactly arranged, ये बहुत ही compactly arrange होते हैं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इस तरह से इस लीव्स के भीतर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम नजर आता है। माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। सो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। And this megasporangium it contain megaspore mother cell। So तो बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल ये दोनों के दोनों डिप्लॉयड होंगे जब दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल दे अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जब इनमें मियोसिस होता है तो बच्चों यहाँ पर कौन से स्पोर प्रोड्यूस होंगे, आप बता सकते हो? मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन होगा और इससे जो स्पोर टेट्राड फॉर्म होगा, तो ये स्पोर्स का नाम बता सकते हो क्या? ये यहाँ पर किस तरह के स्पोर्स फॉर्म होंगे? माइक्रोस्पोर मेगास माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल से किस तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं? व्हेन माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हेन अंडरगो मियोटिक डिवीजन, जब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है तब 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। वेरी गुड, वेरी गुड। और साथ ही साथ जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, तब उससे जो 4 स्पोर प्रोड्यूस होंगे, वो 4 स्पोर कहलाएंगे मेगास्पोर। यानी मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो बच्चों अब आप बता सकते हो कि ये जो एग्जाम्पल है, ये होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है या हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस? चलिए बताइए, विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल इट इज, वेदर इट इज होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस? ये है, दिस इज द स्पोरोफिल ऑफ सेलेजिनेला। ये सेलेजिनेला का स्पोरोफिल स्ट्रक्चर है और सेलेजिनेला इट इज द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। मोस्ट एडवांस टेरिडोफाइट अगर कोई है तो वो सेलेजिनेला माना जाता है जनरली। सेलेजिनेला इट शोज मेनी ऑफ द important, this Selaginella it shows many of the important
advanced characteristic like the presence of the said vessels in them, साथ ही साथ the heterosporous condition in their sporophytic plant body. So Selaginella it is the example of heterosporous pteridophyte. तो आपको समझ में आया, इस स्पोरोफिल्स के भीतर दो तरह के लीव्स है, एक है माइक्रोस्पोरोफिल, फील मतलब लीव्स, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाले लीफ, और दूसरे मेगास्पोर प्रोड्यूस करने वाले लीफ। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोफिल्स के भीतर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। मेगास्पोरोफिल में क्या होते हैं, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। ओके, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होकर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो इसी वजह से ये जो है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कहलाता है। सिलाजिनेला इट इज द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पोरोफिल है, इस स्पोरोफिल में एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर फाउंड होता है, उसे हम लिग्यूल कहते हैं। लिग्यूल, ए रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम लिग्यूल कहते हैं। ओके, सो ये ये जो है ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसके, स्पोरोफिल के। स्पोरोफिल इट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ इन टेरिडोफाइट, और ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन है। मगर स्पोरोफिल जो है लाइकोपोडियम में भी प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफिल इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन लाइकोपोडियम, बट लाइकोपोडियम इट इज द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। ओके, और साथ ही साथ ये स्पोरोफिल सिलाजिनेला में भी प्रोड्यूस होते हैं, मगर सिलाजिनेला इट इज द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखो। ओके, हालांकि दोनों में भी, लाइकोपोडियम में और सिलाजिनेला दोनों में स्पोरोफिल प्रोड्यूस होते हैं, मगर लाइकोपोडियम के स्पोरोफिल होमोस्पोरस होते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही तरह का स्पोर प्रोड्यूस होता है, मगर सिलाजिनेला जो है इनमें दो डिफरेंट तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए सिलाजिनेला जो है हेटेरोस्पोरस होता है, और इट इज द एडवांस कैरेक्टरिस्टिक, ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है टेरिडोफाइट्स का। चलिए अगला पॉइंट। ओके, तो हम आपको बताएंगे थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज सोरस। ओके, सोरस ये कैसा होता है, कहाँ डेवलप होता है, किस तरह से होता है। सो दिस सोरस, सी हियर, these sorors are developed in fern। fern, कल हमने आपको टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, नेफ्रोलेपिस, ओके, ये जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, फर्न, फर्न मींस द श्रबी टेरिडोफाइट्स। श्रबी टेरिडोफाइट जो होते हैं उन्हें हम फर्न कहते हैं। फर्न इट इज द कॉमन टर्म। कुछ बेसिक एग्जांपल फर्न के कौन से हैं, द सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ, ओके, नेफ्रोलेपिस, ड्रायोप्टेरिस, ओके, ड्रायोप्टेरिस, देन टेरिडियम, ओके, एडियंटम, मेसेप्टेरिस, वगैरह वगैरह। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिसे हम फर्न कहते हैं। ओके, काइथिया नाम का एक ट्री फर्न है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है काइथिया अंडर ट्री, ट्री फर्न। टेरिडोफाइट में ट्री हैबिट नहीं होता, याद रखिए। टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है वो ट्री नहीं होती, वो हर्ब और श्रब होती है, यानी स्मॉल साइज प्लांट बॉडी होती है। मगर एक ट्री फर्न है जिसका नाम है काइथिया। काइथिया इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्री फर्न, ट्री फर्न। मगर ट्री फर्न, ट्री जो हैबिट है वो टेरिडोफाइट में होता है क्या, नहीं होता है। टेरिडोफाइट में जो हैबिट होता है वो एक तो हर्ब होता है या फिर श्रब होता है। ट्री हैबिट इज एब्सेंट, एक्सेप्ट काइथिया नाम का ये जो फर्न है, ये ट्री के साइज का, मतलब ये छोटा सा लगभग संतरे का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उतने हाइट वाला ये ट्री फर्न काइथिया होता है, जो कर्नाटक कर्नाटक की और हमारे जो साउथ रीजन है, वेस्टर्न घाट जिसे हम कहते हैं, उस वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाला ट्री फर्न है काइथिया।
ओके सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है इसे हम फर्न कहते हैं, ये सारे के सारे फर्न होते हैं। इन्हें फर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो लीफ होते हैं वो फिदर की तरह नजर आते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं इनके लीव्स पर छोटी छोटे बिंदिया, छोटी छोटी बिंदिया की तरह स्ट्रक्चर होता है। इस बिंदिया की तरह स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोरस। क्या कहते हैं? सोरस। ये देखिए, ये जो बिंदिया की तरह स्ट्रक्चर है इसे हम सोरस कहते हैं, जो इनके लीव्स पर होता है। इनके जो लीव्स होते हैं इनके लीव्स पर स्मॉल स्मॉल टिक्का लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम सोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरस। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सोरस। और ये जो सोरस है, इस सोरस को अगर हम टीएस लेते हैं, इस सोरस का अगर हम टीएस लेकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उस सोरस का इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आता है माइक्रोस्कोप के भीतर। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये जो सिंगल पार्ट है उसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। सो दिस वन इज द स्पोरेंजियम। ओके, तो ये जो सिंगल पार्ट है ये स्पोरेंजियम है, और इस स्पोरेंजियम के भीतर स्पोर मदर सेल होते हैं, डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल। और ये डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल जो होते हैं इनमें मियोसिस डिवीजन होकर क्या फॉर्म होता है? मियोसिस डिवीजन होकर स्पोर टेट्राड फॉर्म होते हैं, और इनके जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, ये हेटेरोस्पोरस नहीं होते। तो सोरस ये जो पार्ट होता है, सोरस ये जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, ये होमोस्पोरस स्ट्रक्चर है। इस बात को आपने याद रखना है, जो सोरस ये जो स्ट्रक्चर है ये होमोस्पोरस स्ट्रक्चर है, यानी ये जो स्पोर प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स होते हैं। दैट इज, ये जो फर्न है, ये फर्न आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसे आपने नोट डाउन करना है। जो फर्न होते हैं, दीज फर्न्स आर द एग्जांपल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। ऐसा कोई फर्न नहीं, ऐसे isn't it? ऐसे फर्न नहीं होंगे जिनमें सोरस या फिर होमोस्पोरस होमोस्पोरस सोरस प्रोड्यूस ना हो। सभी के जो फर्न होते हैं उनमें जो सोरस डेवलप होता है वो सोरस जो स्पोरेंजियम फॉर्म करते हैं, ये स्पोरेंजियम है। इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम, यानी स्पोर का घर। एंजियम मीन्स घर, किसका घर? स्पोर्स का घर। और इस स्पोरेंजियम के भीतर जो डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल होते हैं, इनमें मियोसिस डिवीजन होकर जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं सारे स्पोर्स सिमिलर होते हैं, इस वजह से इसे हम होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। सो ये जो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है दैट इज फर्न, इस फर्न के लीफ पर हमें सोरस नजर आते हैं। इस सोरस के भीतर कई सारे स्पोरेंजियम होते हैं, और ये स्पोरेंजियम एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसे हम होमोस्पोरस कंडीशन कहेंगे। So, ferns are homosporous pteridophyte. Ferns are homosporous pteridophyte. ओके, जो चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपने देखा कि स्पोरोफाइट जो होते हैं, स्पोरोफाइट मीन स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज, स्पोर प्रोड्यूसिंग टेरिडोफाइट्स। और ये जो स्पोर प्रोड्यूसिंग टेरिडोफाइट्स है इनमें डिफरेंट तरह के स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जैसे कि स्पोरोफिल्स, स्ट्रोबिलस, सोरस, स्पोरोकार्प, सिनेंजिया। तो इस तरह के जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और इनमें जो स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम मीन्स स्पोर की रहने की जगह, उसमें रहने वाले जो डिप्लॉइड सेल्स है, कौन से सेल? डिप्लॉइड सेल्स, यानी स्पोरेंजियम। ओके, these diploid spore mother cells, they are present in large number of diploid spore mother cells present in sporangium of sporophylls. Then they undergo meiotic division, और इसमें meiosis होने के बाद they produce the spore tetrad, और इस spore tetrad के सभी spores haploid होते हैं। ओके, हैप्लॉइड होते हैं, हर एक सेल हैप्लॉइड। और इस हैप्लॉइड स्पोर का जर्मिनेशन होकर इनसे बनता है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं।
प्रोथैलस यानी द माइक्रोस्कोपिक गैमेटोफाइटिक ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट थैलस प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइट इज नोन एज प्रोथैलस। व्हाट इज मीन बाय प्रोथैलस? बच्चों आखिरी के 1 मिनट बचे हैं, आपको फिर से री एंटर होना है प्लीज। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय प्रोथैलस? प्रोथैलस क्या होता है? Yes, after the germination of the spores, these spores of pteridophyte, they germinate and produce microscopic, autotrophic, multicellular gametophytic plant body. That gametophytic plant body is known as prothallus. उस प्लांट बॉडी को हम प्रोथैलस कहते हैं। अगला पॉइंट, इस प्रोथैलस में या गैमेटोफाइट में एंथ्रेडियम और आर्चेगोनियम गैमेट प्रोड्यूसिंग